Very good morning, guys. I, Dr. Rahul Mishra, once again welcome you all in my YouTube channel. So, presently we are dealing with the subject engineering drawing and we have completed scales. Now we have moved forward towards the curves. Okay. And in curves also we have completed different methods to construct ellipse. Now we are moving forward to parabola and hyperbola. In this lecture we will see how to construct hyperbola and parabola by different methods. Okay. So, let us first start with hyperbola. So in hyperbola also there are two methods. One is general method and one is rectangular hyperbola. That's it. Only two methods are there. So the method of construction of general method is exactly similar to that of general method of ellipse. The only difference is that in ellipse the eccentricity is 2 by 3, that is less than 1. And here the eccentricity is 3 by 2, that is greater than 1. Isn't it? The distance from directrix to focus is given as 65 mm and you have to draw a tangent and normal at a point P which is 70 mm from the directrix. Okay. So now let us start the same method as we have done in ellipse. The eccentricity is 3 by 2. First we have to draw a vertical line and locate a point C as a directrix. From C draw a horizontal line. Mark a distance CF is equal to 65 mm over this line. Now you have to divide CF in 5 equal parts. Why 5? Because you have to add the numerator and denominator of the eccentricity. So 3 plus 2 is 5, that's why we have divided in 5 equal parts. We have to make an acute angle, cut 5 arcs as I have done here. 1, 2, 3, 4 and 5 of equal length. 5 arcs. Join the last arc with point F and draw a parallel line to this line. So you will be getting 5 equal parts. Okay. Now eccentricity is Vf upon Vc. That is, from focus the vertex is at third part. So from focus the vertex will be at third part. So 1, 2 and 3. This is the third part. From directrix the vertex will be at the second part. This is directrix. This is 1. This is 2. This is second part. Okay. So कहीं से भी लो एक ही मतलब है. तो vertex आ गया. Once you got the vertex, draw a vertical line from vertex. From V as the center and F as the radius, draw a semicircle like this. You will be getting 2 points. Join these 2 points with C. You will get 2 inclined lines. Okay. Now, no need to construct 11 and 13 points just like we have done in ellipse, because in ellipse we have to close the curve, isn't it? And hyperbola is an open curve. So, no need to close it. So, simply you will take the 3 points which you have already done, because you have divided this CF in 5 equal parts. So, take this and this as 3 equal parts. This is 1, this is 2, this is focus point is 3. From 1, 2 and 3 draw vertical lines touching the 2 inclined lines like this. ऊपर साइड में जहां कटा at the top inclined line you will give the name 1 dash 2 dash 3 dash, and bottom where it cut you will give the name 1 double dash 2 double dash and 3 double dash. Exactly similar method as of ellipse. Now what we have done, 1 dash, take the radius 1 dash, put the rounder at F and cut 2 arcs in line number 1. Similarly take 2 dash, F as the center, cut 2 arcs in the line 2. Take 3 dash, cut 2 arcs in the line 3 from focus as the center. ठीक है. क्या करना है, 1 dash रेडियस लोगे, फोकस पे रखोगे और 1 वाली लाइन पे 2 आर्क काटोगे ऊपर नीचे. 2 dash रेडियस लोगे, फोकस पे रखोगे, 2 वाली लाइन पे 2 आर्क काटोगे ऊपर नीचे. 3 dash रेडियस लोगे और फोकस भी यही है तो यहीं पे रख के फिर काटोगे तो यहीं कटेगा इंक्लाइंड लाइन पे. ये नीचे वाला यहाँ से दिख नहीं रहा है, ऐसा आगे बढ़ेगा और ये जुड़ा हुआ है ना. आप जब बनाएंगे तो मेरे बोर्ड में जगह नहीं है तो यहाँ कटेगा, तो 3 डबल डैश. तो अब ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, जोड़ते हुए वर्टेक्स से एक गोला बना देना है, आर्क बना देना है. यही आपका हाइपरबोला है. क्लियर. डॉटेड लाइन से पहले आप जोड़ोगे ऐसे करके, ये डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ते रहोगे. आपको ये ध्यान देना है कि हाइपरबोला ऐसा बनता है, इस टाइप का बनना चाहिए. तो ऐसा जोड़ते हुए डॉटेड लाइन से पहले हल्का लाइन बनाओगे, फिर उसके बाद उसको डार्क करोगे. ठीक है. ये आपका हाइपरबोला बन गया. देखिए जैसा आपने एलिप्स बनाया था एकदम सेम मेथड है, कोई अंतर नहीं है. अब क्या करना है आपको, टेंजेंट नॉर्मल बनाना है पॉइंट P पे, जो कहां से दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स से. तो 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर, राउंडर में 7 सेंटीमीटर ले लो. डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट ये है, C पॉइंट पे राउंडर रखो और 7 सेंटीमीटर का आर्क हाइपरबोला पे काटोगे. ये इंक्लाइंड लाइन पे नहीं काटना है. कहां काटना है आपको, हाइपरबोला पे. तो हाइपरबोला पे यहां कटा वो पॉइंट को, जैसे मेरा यहां कटा है तो मैं इस पॉइंट को करके P नाम दे दिया. अब उस पॉइंट P को कहीं से भी पॉइंट P मिले आपको पॉइंट P को जोड़ना है F से, तो P से F को जोड़ दिया और वहां से PF का परपेंडिकुलर एक लाइन बना दिया. ये देखिए 90 डिग्री है, तो PF का परपेंडिकुलर F पॉइंट से बना दिया और वो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन को जहां काटेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स वाला वर्टिकल लाइन है जो आप सबसे पहले बनाए थे, उस लाइन को जहां काटेगा वो पॉइंट Q आ जाएगा. Q से P को आप जोड़ दोगे तो टेंजेंट मिल जाएगा और
P पॉइंट पे रख के PQ का परपेंडिकुलर बनाओगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। यहाँ ऐसा लिख दोगे टेंजेंट और यहाँ लिख दोगे नॉर्मल। नॉर्मल का नेमिंग करोगे RS। तो जैसा आपने एलिप्स में बनाया था सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है। तो ये हाइपरबोला का जनरल मेथड, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मेथड क्या होता है? रेक्टेंगुलर मेथड में दो चीजें, एक बार आपको केवल पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा और एक बार पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के साथ एंगल दिया होगा, या 60 डिग्री या 120 डिग्री, कुछ भी दिया हो सकता है। तो अभी तो कुछ नहीं दिया, तो आप क्या मानोगे कि एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। सबसे पहले आप एक्स वाई एक्सिस बनाओगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बना लिए, पॉइंट ओरिजिन को O दे दिए। अब यहाँ से एक्स एक्सिस में कितना है, 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 1 2 सेंटीमीटर में एक वर्टिकल लाइन बना दी। और वैसे वाई एक्सिस में कितना है, 50, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लिए, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट किया, दैट पॉइंट विल बी P पॉइंट मिल गया। अब ये P पॉइंट के आगे जो हॉरिजॉन्टली बना है ना, इसको आपको n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हाइपरबोला में ज्यादा नहीं करना है, 2-3 पार्ट बहुत है ना। तो अपन क्या करेंगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे, P पॉइंट पे रखे 1 सेंटीमीटर का आर्क, फिर 1 पे रखे 1 सेंटीमीटर का आर्क, फिर यहाँ रखे 1 सेंटीमीटर का आर्क, इधर हो गया। सिमिलरली P पॉइंट पे रख के 1 सेंटीमीटर का आर्क इधर भी काट देंगे। तो इसको 1 2 3 लिख दिए, यहाँ इसको 1 लिख दिए। अब O से 1 को जोड़ते हुए ऊपर वर्टिकल लाइन पे मिला दो, जहां मिला एक और 1 आ गया। सिमिलरली O से 1 को जोड़ो, O से 2 को जोड़ो, O से 3 को जोड़ो। तो O से 1 को जोड़े, वर्टिकल लाइन को जहां काटा ये 1 पॉइंट आ गया। O से 2 को जोड़े, वर्टिकल लाइन को जहां काटा वो 2 पॉइंट आ गया। O से 3 को जोड़े, वर्टिकल लाइन को जहां काटा वो 3 पॉइंट आ गया। तो ये वाले 1 से वर्टिकल, यहां से हॉरिजॉन्टल, 2 से वर्टिकल, ये 2 से हॉरिजॉन्टल, यहां 3 से वर्टिकल, यहां 3 से हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली ये वाले 1 से वर्टिकल और यहां से हॉरिजॉन्टल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। इसको जोड़ते हुए फ्री हैंड पहले बनाओगे डॉटेड लाइन से, फिर डार्क कर दोगे, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर एंगल दिया है 60 डिग्री, तो एक्सिस का तो 60 डिग्री का बनाना है, दैट्स इट। पहले एक्स एक्सिस बनाए, फिर प्रोडक्टर रख के वहां से वहां ये O पॉइंट पे चांदा रखे प्रोडक्टर, और वहां से 60 डिग्री मेजर किए। एक एंगल लाइन मिल गया आपको, वो लाइन वाई एक्सिस बन गया आपका। अब यहां से 2 सेंटीमीटर ले लो, इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, और यहां से 5 सेंटीमीटर ले लो और हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दो। दोनों जहां मिल गया पॉइंट P आ गया। सेम मेथड करना है, फिर 3 पार्ट इधर डिवाइड किए और यहां एक पार्ट डिवाइड किए। यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां से क्या होगा, देखो ये आप 1 को O से जोड़ दोगे, O से 2 को, O से 3 को। तो ये तीनों जब जोड़ोगे आप, तो ये वर्टिकल लाइन को ये यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो 1 वाले को जोड़ते समय यहाँ कटा वो 1 हो गया, 2 को जोड़ते समय यहाँ कटा वो 2 हो गया, 3 को जोड़ते समय यहाँ कटा वो 3 हो गया। तो यहाँ से ऐसा इंक्लाइन ये लाइन बनी आपकी एक्सिस की, उसी के पैरेलल यहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल जहाँ मिल जाएगा वो आपको 3 पॉइंट मिला। सिमिलरली ये 1 को भी इसके पैरेलल उठाए ऊपर, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल उठाए, ये जहाँ मिल गया। ये सबको जोड़ते हुए आपने एक कर्व बना दिया, दैट विल बी योर हाइपरबोला। ये इतना ही मेथड है हाइपरबोला का बस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज पैराबोला। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो हाइपरबोला में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा आपने एलिप्स बनाया था सेम वैसे ही अपन ने हाइपरबोला बनाया, ठीक है। पैराबोला भी वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। क्या अपन देख रहे थे, अब अपन बनाएंगे पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में वही मेथड्स है। सबसे पहले क्या है, जनरल मेथड, देन ऑब्लॉन्ग मेथड, देन टेंजेंट मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड से आपको पैराबोला बनाना है। पैराबोला थोड़ा और इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे हाइपरबोला अपन देखा कैसा इजी था, क्योंकि एलिप्स में क्या हो रहा था, आपको पूरा एक गोल फिगर बनाना पड़ रहा था, इसलिए आपको ज्यादा पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा था। लेकिन हाइपरबोला अपन ने क्या देखा, केवल एक आर्क बनाना है ऐसा, तो उसमें हम कम पार्ट्स में डिवाइड किए। सिमिलरली पैराबोला में भी क्या है, एक आर्क बनाना है, तो उसको भी ऐसे कम पार्ट में डिवाइड करने से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पैराबोला और हाइपरबोला इजीली बनता है, एलिप्स में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी मेथड सेम है। अपन अगले टॉपिक में आते हैं, क्या बनाना है अपन को, पैराबोला। सबसे पहले अपन वही देख लेते हैं, जनरल मेथड। हर किसी में मेथड तो होता ही है। अब यहां हमको पता है कि इलिप्स में क्या था, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता था, पैराबोला हाइपरबोला में क्या होता था, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। लेकिन पैराबोला में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, ये होता है। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस 50 मान लेते हैं, और यहां मान लेते हैं कि वर्टेक्स से पॉइंट P में डिस्टेंस दिया हुआ है 60 है। यहां आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाना है,
ठीक है। तो मुझे पता है कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है VF अपॉन VC, और ये 1 के बराबर है, मतलब VF इज इक्वल टू VC होगा, ठीक है, 1 के बराबर होगा। तो अब देखो यहां से मैं पहले क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन बनाया, उस पॉइंट पे कहीं मार्क कर दिया C, फिर C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, उस पे F मार्क कर दिया, CF जिसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 50 mm, ये बना लिया। अब अपन CF को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे, जितना आपका इसेंट्रिसिटी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ तो कुछ है नहीं, क्या है इसेंट्रिसिटी, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो 1/1 मतलब इसको अगर ऐड करोगे आप 1 + 1 तो कितना होगा 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट ले लो। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 2.5 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लो, दैट विल बी योर मिड पॉइंट। और ये मिड पॉइंट वर्टेक्स होगा, क्यों, क्योंकि VF अपॉन VC इज इक्वल टू 1 है, VF बराबर VC। तो इस पॉइंट को अगर आप V मान लोगे तो VF विल बी VC इक्वल टू VC, बराबर हो गया, ठीक। यहाँ वर्टेक्स देखिए कितना इजीली लोकेट हो गया। अब यहाँ पे आपको वो इंक्लाइन लाइन वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब ये वर्टेक्स से आगे लाइन को आपको n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप 1 1 सेंटीमीटर का आर्क काटते जाओ, है कि नहीं, 1 1 सेंटीमीटर का काटोगे, ये क्या है 0.1 0.2 3 4, इतना ही कर दो बस, 1 2 3 4, इतना हो गया, बहुत है। अब यहाँ सबसे आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन बना देना है। तो 1 से बना दिए, 2 से बना दिए, 3 से बना दिए, 4 से बना दिए। अब यहाँ पे इंक्लाइन लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, तो 1 1 डैश 2 2 डैश आप जो आर्क लेते थे वो तो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि इंक्लाइन लाइन है नहीं आपके पास। तो अब क्या करना है, आपको C से लेना है, C से 1 मेजर करोगे, C से 1 मेजर करोगे, फोकस पे रख के ये 1 वाली लाइन पे 2 आर्क काट दोगे। C से 2 मेजर करोगे, फोकस पे रख के 2 वाली लाइन पे 2 आर्क काट दोगे। C से 3 मेजर करोगे, फोकस पे रख के 3 वाली लाइन पे 2 आर्क काटोगे। C से 4 मेजर करोगे, फोकस पे रख के 4 वाली लाइन पे 2 आर्क काट दोगे। तो ये आपको जोड़ दोगे, जब पहले तो आप डॉटेड लाइन से जोड़ना है आपको, ये ध्यान देना कि पैराबोला ऐसा बनता है, तो वैसा आपको जोड़ना है पहले डॉटेड लाइन से, फ्री हैंड अगर आपको जोड़ना है तो ऐसा करके, ये हो गया। ये बन गया। अब यहां से क्या करोगे, इसको डार्क करना है, ये बन गया पैराबोला, क्लियर। तो ऐसा बनता है पैराबोला, बस डिफरेंस क्या है, सेम मेथड देखिए, बस अपन वहां क्या करते थे, क्योंकि हमको इंक्लाइन लाइन पता था, तो हम क्या करते थे 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश मेजर करते थे, और फोकस से रख के 1 वाली लाइन पे 2 वाली लाइन पे ऊपर नीचे आर्क काटते थे। अब वही चीज यहाँ आपको इंक्लाइन पॉइंट नहीं है, तो 1 1 डैश 2 2 डैश तो मिलेगा नहीं ना आपको, तो आप C से मेजर करो, C1 मेजर करो, C2 मेजर करो, C3 मेजर करो, C4 मेजर किए, फोकस पे रख के 1 वाली लाइन पे 2 वाली लाइन पे 3 वाली लाइन पे 4 वाली लाइन पे ऊपर नीचे आर्क काट दिए रेस्पेक्टिवली, जोड़ दिए, आपको पैराबोला मिल जाएगा, क्लियर। कितना इजी देखिए। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट P लोकेट करना है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स है, राउंडर पे 6 सेंटीमीटर का चाप ले लो, वर्टेक्स पे राउंडर रखो, और पैराबोला पे जहां भी कट रहा है, मान लो यहाँ मैंने आर्क काट दिया 6 सेंटीमीटर, तो ये मेरे को पॉइंट P मिल गया। अब इस पॉइंट P को कहीं भी जैसे पॉइंट P मिला, आपको जोड़ना कहां से, उसको F से, तो ये मैंने F से जोड़ दिया पॉइंट P को, जैसे ही पॉइंट P मिला, फिर इसका परपेंडिकुलर बनाओ F पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर आगे बढ़ के जहां भी कटेगा डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन को, वो पॉइंट आपका Q हो जाएगा। फिर P से Q को जोड़ दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ये आपका बन गया टेंजेंट। और ये PQ का परपेंडिकुलर बना दोगे P से, तो ये आपका बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो कितना सिंपल देखिए, ये आपका जनरल मेथड हो गया, टेंजेंट नॉर्मल बन गया, पैराबोला बन गया। अब अगला मेथड देखते हैं हम, टेंजेंट मेथड। अब टेंजेंट मेथड में कैसे करना है, पैराबोला बनाने के लिए आपको यहां आपको क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो वो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कोई सा मेथड दे सकता है, या तो बोलेगा कि बेस 50 mm है और ऑल्टीट्यूड 70 mm। अब क्या करोगे, ये 50 mm का बेस बना लिया आपने, 50 का 5 सेंटीमीटर, उसका मिड पॉइंट निकाल लो, वहां से एक परपेंडिकुलर बना लो, इसकी हाइट रहेगी 70, ऑल्टीट्यूड बन गया, इसको जोड़ दो।
तो आप ध्यान दोगे जो ट्रायंगल बनेगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, याद रखना हमेशा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, तभी आप पैराबोला बना सकते हो। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, जैसे ही आपको मिल गया, ये मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब जैसे ये मिला तो आप AC और BC को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कितना भी कर सकते हो, 8 करोगे तो सहूलियत रहेगा। तो ये AC को 8 इक्वल पार्ट करना है, पहले क्या करोगे, एक एक्यूट एंगल बना दिया, यहाँ से 8 इक्वल पार्ट्स करना है, तो यहाँ पे रख के कोई भी एक राउंडर में आर्क सेट कर लो, सपोज 1 सेंटीमीटर कर रहे हो, तो यहाँ पे रख के 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वाले को C से जोड़ दिए, इसके पैरेलली अपन बनाते गए। तो ये देखिए मेरा 8 इक्वल पार्ट्स हो गया। सिमिलरली यहाँ भी करोगे, एक एक्यूट एंगल 2 3 4 5 6 7 8, इससे इसको जोड़ दिए और उसके पैरेलली क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको मिलते गए, देखो यहाँ मिल गए। अब मान लो मैं नेमिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ उल्टा नेमिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट से पॉइंट को मिला देना है। तो 7 से 7 को जोड़ दिए, 6 से 6 को जोड़ दिए, 5 से 5 को जोड़ दिए, 4 से 4 को जोड़ दिए, 3 से 3 को जोड़ दिए, 2 से 2 को जोड़ दिए, 1 से 1 को जोड़ दिए। तो यहाँ पे देखो ये आपको एक पैराबोला टाइप का दिख रहा है, अपने आप बन गया। इसको बस डार्क कर दो, अपने आप बन गया। देखिए ये बन गया आपका पैराबोला, कितना सिंपल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है टेंजेंट मेथड में। क्या बोलेगा कि एक बॉल को आपने थ्रो किया यहां से, इस पॉइंट से, कोई एक पॉइंट से आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो किए तो बॉल हॉरिजॉन्टली 50 मिलीमीटर कवर किया, मतलब ऊपर उड़ के गिरा बॉल तो 50 मिलीमीटर हो गया, तो 5 सेंटीमीटर लाइन बना दिया, और मैक्सिमम उड़ गया वो 35 मिलीमीटर। कितना उड़ा? 35 मिलीमीटर की हाइट वो अटेन किया, फिर नीचे गिर गया। तो ये हाइट आपको दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। पैराबोला का मैक्सिमम हाइट कितना है? कभी आप बॉल थ्रो करोगे ना तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ये तो आपको पता होगा। तो हमको जैसे वो बॉल वाला क्वेश्चन आ गया, समझ में आ जाना चाहिए कि पैराबोला बनाना है। अब कैसे बनेगा? 35 mm की हाइट है, तो आपको अगर ये टेंजेंट मेथड बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि टोटल क्या है, देखो ये जो सेंटर में कटा पैराबोला, ये इसका डबल, ये लाइन, ये उसके बीच से कट गया ऐसे पैराबोला। तो ये लाइन 70 का था, तो मेरा 35 में पैराबोला घूम गया। अब 35 दिया है तो मैं 70 बना लूंगा हाइट, एक ही मतलब ट्रायंगल बन जाएगा उससे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऐसा होता है टेंजेंट मेथड, कई बार घुमा देगा, आपको पैराबोला का मैक्सिमम हाइट दे देगा, तो आपको डबल कर देना उसको। पैराबोला का मैक्सिमम हाइट जितना होगा उसको डबल कर दोगे तो आपको ट्रायंगल का हाइट मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का हाइट जितना था उसके आधे में पैराबोला बना था। तो डेफिनेट सी बात है, जितना पैराबोला का हाइट होगा उसको डबल करोगे तो ट्रायंगल का हाइट मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टेंजेंट मेथड का, ठीक है। इसको जल्दी ड्रॉ करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों मेथड आपको समझा दिया हूं मैं। उसके बाद अपन एक लास्ट मेथड बच गया पैराबोला का, ऑब्लॉन्ग मेथड, उसको जल्दी से देख लेते हैं। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक, चलिए आखिरी जो मेथड बचा वो कौन सा मेथड है? ऑब्लॉन्ग मेथड। अब इसमें भी वही सेम लॉजिक है। एक मेथड क्या होता है? रेक्टेंगल मेथड। एक मेथड होता है आपका रेक्टेंगल मेथड, और एक मेथड होता है आपका पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। रेक्टेंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। अब आपको क्या करना है, पहले रेक्टेंगल मेथड में हमको रेक्टेंगल का लेंथ सपोज करते हैं दिया हुआ है 100 mm और ब्रेड दिया हुआ है 150 mm। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक वर्टिकल लाइन सपोज बना लिया, इसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, 150 mm। जैसे बना फिर वहां से कोने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, जिसका लेंथ कितना है 100 बना लिया। फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों मिल जाएगा।
एंगल बन गया आपका। इस 100 का सेंटर निकाल लेना 5 सेंटीमीटर, इसको वर्टिकली ऊपर बढ़ा देना, ये बन गया। अब यहाँ नाम दे दो A B C D, तो दे दिए E, इसको दे दिए F, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, देखो इसको मान लेता हूं मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने टेंजेंट मेथड में। तो इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स, फिर इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स। अब मान लेता हूं मैं इसको नाम दे रहा हूं 1 2, तो यहां भी आ जाएगा 1 2, यहां पे आ जाएगा 1 डैश 2 डैश, यहां भी आ जाएगा 1 डैश 2 डैश। अब कुछ नहीं करना है, E से 1 को और 2 को जोड़ देना है, E से 1 डैश और 2 डैश को जोड़ देना है, और यहाँ 1 को वर्टिकली ऊपर उठाना है E1 वाले लाइन पे, 2 को वर्टिकली ऊपर उठाना है E2 वाले लाइन पे। सिमिलरली 2 डैश को वर्टिकली ऊपर उठाना है E2 डैश, 1 डैश को वर्टिकली ऊपर उठाना है E1 डैश। अब ये कर्व जो है पहले डॉटेड लाइन से आप जोड़ोगे, ऐसा कुछ दिखेगा, फिर इसको डार्क करोगे, और या तो फ्रेंच कर्व यूज करके बनाओगे, जैसे आपकी मर्जी। तो ये बन गया आपका पैराबोला। कितना सिंपल मेथड देखिए, रेक्टेंगुलर मेथड, ठीक है। सेम ये लॉजिक रहेगा पैरेललोग्राम में, आपको इंग्लिश में भी पता था, सेम बनता है, बस मेथड क्या हो गया, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में क्या था, यहाँ 90 डिग्री, पैरेललोग्राम में ये एंगल कुछ दिया होगा, चाहे आपको एंगल दिया होगा 60 डिग्री या 120 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा तो कैसे बनाओगे ऐसा, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप 100 ले लोगे और यहाँ पे 150 ले लोगे, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, देखिए बन गया। और वही अगर 120 बोलेगा तो ऐसा बनेगा, ये 100 का है, ये 150 का है, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। इसका मिड पॉइंट निकाल लो, ऊपर वाले को मिड पॉइंट से जोड़ दो, लाइन के पैरेलल होना चाहिए, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, यहाँ पैरेलल जोड़ दो, ये A B C D हो गया E F। सिमिलरली A B C D हो गया E F। कोई 3 इक्वल पार्ट्स, आपको पता है कैसे करते हैं इक्वल पार्ट। एक लाइन को जितने इक्वल पार्ट में करोगे तो सारे लाइन को उतने इक्वल पार्ट में करना पड़ेगा, ये बस ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये 1 2, ये भी आ गया 1 2, ये 1 डैश 2 डैश, ये भी आ गया 1 डैश 2 डैश। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 1 2, ये 1 डैश 2 डैश 1 डैश 2 डैश। वही सेम मेथड, E से जोड़ोगे 1 को और 2 को, और 1 डैश को और 2 डैश। अब यहाँ से क्या होगा, वर्टिकल नहीं पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपको जोड़ना है, तो ये 1 से इसके पैरेलल उठाओगे E1 वाले लाइन पे, 2 से पैरेलल उठाओगे E2 वाले लाइन पे, सिमिलरली 2 डैश से पैरेलल उठाओगे E2 डैश, 1 डैश से पैरेलल उठाओगे E1 डैश। यहाँ भी सेम वैसे, E से 2 को और 1 को जोड़ दोगे, और 1 डैश को और 2 डैश को जोड़ दोगे। अब 1 से पैरेलल उठाओगे E1 पे, 2 से पैरेलल उठाओगे E2 पे, सिमिलरली 2 डैश से पैरेलल उठाओगे E2 डैश पे, 1 डैश से पैरेलल उठाओगे E1 डैश। पॉइंट्स मिल गए आपको, इसको जोड़ोगे तो अपने आप आपको देखिए पैराबोला मिल जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी ऐसे, ये बन गया पैराबोला, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बता दिए, एलिप्स भी कंप्लीट हो गया, पैराबोला भी कंप्लीट हो गया, हाइपरबोला भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके एग्जांपल्स देख लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे पूछते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसा अपन ने मेथड्स देखे ना, बस वैसे ही डायमेंशन दे देगा, मेथड का नाम लिख देगा, बनाओ बोल देगा। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देता है, तो कैसे घुमाता है क्या करता है अपन न्यूमेरिकल देख लेंगे, बहुत सिंपल है। आपने मेथड अगर सीख लिया तो जरूर क्वेश्चन को बना पाओ, और डिफरेंट मेथड्स जितने भी थे मैंने सारे आपको बता दिए। तो पुराने जो वीडियोस हैं एलिप्स वाले वो भी देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए, तो आपका कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो गया, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के डिफरेंट मेथड्स। अब इसका न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तब तक इसको प्रैक्टिस करिए गाइस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।